हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 6 का लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे। लेसन का नाम है सेपरेटिंग ऑफ सब्सटेंस। तो उसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे 5. बच्चों। Separation of substances. Most of the things around us like air, seawater, soil, rock, milk and paint are mixtures. Seawater is a mixture of salts dissolved in water. Milk is a mixture of cream or butter and water. A mixture is a substance that contains two or more pure substances mixed together in varying proportions. The substances, components present in the mixture do not lose their identity. These components can usually be separated by simple physical methods. Milk or curd is churned to separate the butter from the water. Common salt that is used in our kitchen is prepared from seawater by separating salt from water. Let us study the need of separation of substances from their mixture. Need. Now see students, most of the things around us like air, water, soil, rocks, milks and paints are mixed। देखो हमारे आजू बाजू में बहुत सी चीज ऐसी है जैसे कि एयर है, सी वाटर है, सॉइल है, वो सभी मिक्सचर मीन्स बहुत सी चीजों से बने हुए हैं। सी वाटर इज ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर। और जो सी वाटर है वो सी वाटर के अंदर क्या है, सॉल्ट डिसॉल्व मीन्स सॉल्ट मिला हुआ होता है। ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस दैट कंटेन्स टू और मोर प्योर सब्सटेंस mixed together in different proportion. The substance that are mixed to form a mixture are called constituents or components. Means जो मिक्सचर है उसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स होकर एक सब्सटेंस बनता है। तो उसका प्रोपोर्शन है, उसकी मात्रा है वो थोड़ी, कोई सब्सटेंस ज़्यादा होता है या कोई सब्सटेंस थोड़ा होता है। जो सब्सटेंस इस तरह मिक्स्ड फॉर्म में एक टाइप ऑफ मिक्सचर बना होता है उसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस इन ए मिक्सचर। तो हमें जो सब्सटेंस है मिक्सचर उसे सेपरेशन मीन्स उसे अलग करना है, तो किस तरह हम उसका उसे हम अलग कर सकते हैं। Need for separation of substances in a mixture. To remove undesirable substances. Tea is made by boiling tea leaves in water and then adding sugar and milk. After the tea has been made, used tea leaves are an undesirable component of the mixture. We separate it by using a filter called tea strainer. Before eating a banana, we peel off its skin, undesirable component. To obtain useful components. Crude petroleum is a mixture of various components such as petrol, diesel, kerosene, and petroleum gas. We separate the petroleum mixture to obtain these useful components. Kerosene is used as a household fuel, whereas petrol and diesel are used as fuels in vehicles. To remove harmful substances. We buy wheat, rice and pulses from the market. These food grains usually contain small pieces of stones and insects. These pieces of stones and insects are harmful to us. So, we separate them from wheat, rice and pulses before using them. Methods of separation. When we want to separate a component of a mixture, we should first find out. फिर क्या होता है, देखो बच्चों आगे लेसन में, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी। मीन्स जो सब्सटेंस है मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है वो अपनी आइडेंटिटी मीन्स पहचान नहीं लॉस करती। दीज कंपोनेंट्स कैन यूजुअली बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। मीन्स बहुत सी चीज़ है जो मिक्सचर के अंदर डिजॉल्व नहीं होती, वो अलग ही रहती है, तो उसे हमें सेपरेट करना है, उसे अलग निकालना है। तो एक सिंपल फिजिकल मेथड मीन्स अपने हाथ से हम उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट दैट इज यूज्ड इन आवर किचन मीन्स हमारे किचन में जो हम कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं वो सी वाटर में से ही प्रिपेयर होता है। मीन्स सी वाटर को एवोपरेट करके उसमें से वो कॉमन सॉल्ट प्रिपेयर किया जाता है। तो अब आगे हम देखेंगे
कि टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंस, जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसे हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो कि वी बाय व्हीट, राइस एंड पल्सेस फ्रॉम द मार्केट, दीज फूड ग्रेन्स यूजुअली कंटेन स्मॉल पीस ऑफ स्टोन्स एंड इंसेक्ट्स। देखो ये जो हम सीरियल्स बाजार में से खरीदते हैं, जैसे कि वीट है, राइस है, तो जो ग्रेन्स है वो उसके अंदर छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं। दीज पीसेस ऑफ स्टोन्स एंड इंसेक्ट्स आर हार्मफुल टू अस। तो ये जो स्टोन्स और इंसेक्ट्स जो है वो हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए हार्मफुल मीन्स नुकसानकारक होते हैं। सो वी सेपरेट देम फ्रॉम व्हीट, राइस एंड पल्सेस बिफोर यूजिंग देम। इसलिए हम ये ग्रेन्स में से ये स्टोन्स और इंसेक्ट्स को अलग निकाल देते हैं, जिससे हमें हार्मफुल ना हो। नाउ मेथड ऑफ सेपरेशन आगे हम देखेंगे। Some of its properties that would be different from the remaining components of the mixture. Let us study the simple methods of separating substances that are mixed together. You may come across some of these methods being used in day-to-day activities. Separation of insoluble solids from a mixture. Hand picking. The grains and pulses that we buy from the market may contain undesirable components like. फिर देखो बच्चों, टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स, क्रूड पेट्रोलियम इज मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपोनेंट। जो क्रूड है वो पेट्रोलियम में बहुत से मिक्सचर से बना हुआ होता है, और उसके अंदर से हम उसको अलग अलग सेपरेट करके पेट्रोल को, डीजल को, केरोसिन को, पेट्रोलियम गैस को अलग कर सकते हैं। फिर टू रिमूव अनडिजायरेबल सब्सटेंस मीन्स जो काम ना आए वैसे सब्सटेंस को हम रिमूव करते हैं। यू माइट हैव सीन योर मदर प्रिपेयरिंग टी बाय एडिंग टी लीव्स। तो आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी जो है चाय बनाती है तो उसके अंदर टी लीव्स को, शुगर को और मिल्क को डालकर उसे बॉईल करती है वाटर के अंदर। आफ्टर द टी इज प्रिपेयर शी सेपरेट द टी लीव्स फ्रॉम ए टी। फिर जो जब टी प्रिपेयर हो जाती है तो उसको वो फनल से टी लीव्स को अलग कर देती है, स्टेनर से निकाल देती है। Why does she do this? This is done because the used tea leaves have been undesirable component. Means इसलिए क्यों किया जाता है कि जो टी लीव्स है वो अनडिजायरेबल है, मीन्स वो हमारे खाने में काम का नहीं है, इसलिए हम उसे अलग से निकाल देते हैं। अब आएगा सेपरेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम ए मिक्सचर। मीन्स जो सॉलिड सब्सटेंस है मिक्सचर में, जो इनसोल्युबल है मीन्स उसमें वो पिघलते नहीं है, उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं। Like small stones. These components look very different from the food grains. They are of different sizes and colors, so these can be spotted easily. Such undesirable components can be removed by hand picking. Hand picking means to take out by hand. It is a convenient method of separation only when the size, shape, or color of the unwanted substance is different from that of the useful one. The quantity of the mixture is small and the unwanted substance is present in smaller quantities. फिर देखो बच्चों, हैंड पिकिंग मीन्स हाथ से उसे निकालना। मीन्स मानो कि द ग्रेन्स एंड पल्सेस है जिसे हम मार्केट से बाय करते हैं, तो वो अनडिजायरेबल में कंटेन अनडिजायरेबल कंपोनेंट। मीन्स जो वो व्हीट और पल्सेस के अंदर जो स्टोन्स है, इंसेक्ट्स है, वो अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स है। तो उसका हम इस्तेमाल नहीं करते फूड के अंदर, तो उसे हमें निकालना पड़ता है, उसे साफ करना पड़ता है, जिसे उससे हम हाथ से उसको निकाल कर फेंकते हैं, उसे हैंड पिकिंग बोलते हैं। द कंपोनेंट लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फूड ग्रेन्स, और वो फूड ग्रेन्स से अलग ही हमें उसके अंदर दिखाई देते हैं, और उसकी साइज और कलर भी अलग अलग होते हैं। सो वी कैन इजीली सीन दीज कंपोनेंट्स फ्रॉम द ग्रेन्स। मीन्स उसे हम आसानी से ग्रेन्स के अंदर से अलग कर सकते हैं। सच अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स कैन बी रिमूव बाय हैंड पिकिंग। तो ऐसे अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स है उसे हम हाथ से अलग कर सकते हैं। इट इज कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेशन ओनली व्हेन। कैसे उसे हम अलग कर सकते हैं, तो कि उसकी जो साइज है, शेप है, कलर है, जो अनवांटेड सब्सटेंस है इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वी यूज वन। जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वो उससे अलग ही साइज, शेप और कलर के होते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज स्मॉल एंड अनवांटेड सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन दिस स्मॉल क्वांटिटी। और जो उसकी क्वांटिटी होती है मिक्सचर के अंदर वो
थोड़ी मात्रा में ही होती है और वो जो प्रेजेंट होते हैं उसकी भी क्वांटिटी थोड़ी ही होती है। और आगे हम देखेंगे थ्रेशिंग। Threshing. Cereals like wheat and rice are a source of food for us. After harvesting these food crops, the grains need to be separated from the rest of the plant. This is done by the process of threshing. The process of separating the grains from the rest of the plant is called threshing. It is done in the following ways. In manual threshing, the farmer holds a pile of crop in his hand and hits it against a rock or any hard surface. During this process, the देखो बच्चों, थ्रेशिंग मीन्स सीरियल्स लाइक व्हीट एंड राइस नीड टू सेपरेट फ्रॉम स्टॉक। मीन्स उसके अंदर जो कचरा होता है उससे उसे अलग निकालना पड़ता है, उसको हम थ्रेशिंग बोलते हैं। तो प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक बाय बीटिंग देम ऑन द ग्राउंड और यूजिंग ए मशीन इज कॉल्ड थ्रेशिंग। मीन्स जो प्रोसेस है ग्रेन्स के अंदर जो कचरा होता है उसे अलग करने के लिए उसे जमीन पर डालकर निकाला जाता है। मीन्स उसको बीट करके ग्राउंड में बीट करके निकाला जाता है या मशीन से निकाला जाता है, उसे थ्रेशिंग बोलते हैं। तो मैनुअल थ्रेशिंग क्या है? द फार्मर होल्ड्स ए पील ऑफ क्रॉप इन हिज हैंड एंड हिट्स ऑन ए रॉक। मीन्स जो फार्मर होते हैं वो जो पाइल होती है क्रॉप्स की उसे हाथ में लेते हैं और उसको रॉक्स के ऊपर हीट करते हैं। एंड हार्ड सरफेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द ग्रेन सेपरेट फ्रॉम द स्टॉक। तो इस तरह बहुत टाइम तक स्टोन्स के ऊपर उसको हीट करने से जो ग्रेन्स है वो अलग सेपरेट हो जाता है, स्टॉक मीन्स कचरे से। और थ्रेसिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय मशीन। और थ्रेसिंग जो है वो मशीन के द्वारा भी किया जाता है जिसे थ्रेशर बोलते हैं। दिस मशीन इज यूज्ड फॉर थ्रेसिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स। तो मशीन का इस्तेमाल कब होता है? जब भी ग्रेन्स ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं तो उसको थ्रेशिंग करने के लिए मशीन का इस्तेमाल होता है। From the plant. Threshing can be done by a machine called thresher. This machine is used for threshing large quantities. Threshing can also be done by combine harvester. Winnowing.